friends. So as we discussed on the group that from the next module, that is calculus, I will be giving minimum 3 problems, which I will be discussing over here. And for practice, I will be giving 5 problems. So let's try it, and do tell me that it is okay. I mean, I don't want you guys to get overburdened, right? But at the same time, there should be a minimum number of questions, that keeps you a little busy. ठीक है? So कैलकुलस में यू विल ट्राई, आपको 3 क्वेश्चन देंगे, वही डिस्कस करेंगे, और आप 5 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क काइंड ऑफ थिंग. तो देखते हैं. और पहला क्वेश्चन जो है, लेट्स सी. So you are asked to find the values of a and b when x tending to 0 such that the limit is 1, right? Such that the limit is 1. So ऐसे क्वेश्चन सेट क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, और इजी होते हैं, जहां टफ भी नहीं होते हैं. सो आई थॉट कि ये क्वेश्चन देना चाहिए तो प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा. अब इनको सॉल्व करने के लिए देयर इज वन स्टैंडर्ड मेथड व्हिच आई हैव गिवन इन द सॉल्यूशन. आपने वो पढ़ लिया होगा होपफुली. द अनदर मेथड इज बाय यूजिंग द सीरीज. ठीक है? एंड द सीरीज मेथड इज क्वाइट हैंडी एंड समटाइम इट्स decode the problem very easily. So always keep in mind that apart from the usual L-Hospital method that we generally tend to use in these kind of question, think whether you can use series or not, right? How to use that? Have a look. The question says that this limit should be 1, right? We know that cos x equal to 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial till infinity, right? And sin x equal to x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial till infinity, right? So put these values in this form. So what will you get? X in bracket 1 plus a in bracket, now it's cos theta, right? Cos theta is 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial. Rest of the term you don't need to write because they will contain x, and when you will put x equal to 0, so those value of those component will automatically be 0. So you should not go beyond x cube, I should say. ठीक है? So x4 तक है more than sufficient. This bracket closes, minus b sin x का series x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 1 minute x5 by 5 factorial ऐसे करके upon x cube, right? Now you start collecting the terms in the decreasing order of their power, right? So first term, can you see, is there any constant term in the numerator? No, right? So there is no constant term in the numerator. Then the next term will be x. So now I am collecting the coefficient of x. From here you will get 1 a, from here minus b. Next term x square, you won't get any term which has x square because here it will be x, then x cube, again here x and x cube, so 0. Now collecting the coefficient of x cube, from here it will be minus a by 2, right? Minus a by 2, and from here minus a by 2, and from here plus b by 6, right? Plus
again there will be no term of x power 4, directly x by 4, but terms beyond that are immaterial, because in any case when you will put x equal to 0, the value will be 0. So those terms will not make any difference. So ignore again this. आप जो बोल रहा हूँ वो आर्गुमेंट अच्छे से सुनना, ठीक है? नाउ ये दिस इज आवर क्वेश्चन, वी वांट आवर लिमिट टू बी 1, राइट? सो वो ऐसा कब हो सकता है? वो ऐसा कब हो सकता है? जब अपने पास ये टर्म, पहली बात तो ये टर्म नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि जब when this term will be 0, then only this x cube will cancel out this x cube, right? We will get some constant value and rest of the term will become 0. So this constant value will form your limit, that is 1. You are getting me? If somehow this coefficient becomes 0, then this will be removed, x cube will get cancelled, and this will be constant term, and this again will become 0. So we hope that कि यही हमारा लिमिट होगा, राइट? यहाँ पे क्या था? x equal 1 plus a, ठीक है? सो इसको 0 करने के लिए what can we do? 1 plus a minus b should be 0. This is our first condition. And second condition, minus a by 2 plus b by 6 equal to 1. Yeah, second condition. Use calculator, solve these simultaneous equations, ठीक है? And you will get the values of a and b. Confirm करिएगा, hopefully correct हो गए, यही equations होंगी, ठीक है? एक बार verify करता हूँ, यही equations होंगी. 1 plus a minus b, and another question was b minus 3 equal to 6. Yeah, right. ठीक है? You are getting me? L hospital वाला method is relatively lengthier procedure. अभी if you solve this question by series method, it becomes very easy. You have to simply collect the coefficients of various terms involving x, arrange them, और फिर थोड़ा कॉमन सेंस से कि कौन सा टर्म इसमें नहीं होता तो मैं आराम से निकाल लेता, इस टाइप से करके जाओ, ठीक है? सो जब भी लिमिट में आए तो जरूर से ट्राई करो कि कैन इट बी सॉल्व्ड बाय सीरीज मेथड, क्योंकि जब भी सीरीज मेथड किसी क्वेश्चन में लगता है ना, क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है? अदरवाइज आपके पास वो यूजुअल मेथड है ही है, जैसे आप सब लोग करते हैं और मैंने सोल्यूशन में भी दे रखा है. दिस इज समथिंग न्यू, ट्राई इट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि fx इक्वल टू कुछ दे रखा है. दिस इज गेटेड इंटीजर फंक्शन n प्लस p sin x, ठीक है? और इट इज गिवन दैट x इज एलिमेंट ऑफ 0, pi, राइट? fx इक्वल टू n प्लस p sin x 0, pi, ठीक है? f is not differentiable. Okay. In this question, we have to find points where your fx is not differentiable, right? अभी पता है आपको कैसे होते हैं क्वेश्चंस? Differentiability, when you can say that the function is not differentiable at some point, if it is broken, if the graph of that function is broken at some point, we can definitely say that it is not differentiable at that point. Or if the graph of that function has a corner, then we say that it's not differentiable at that point. अभी ये बात समझ में आई हो? Well and good. नहीं समझ में आई तो just see, if some function is, let's say this is our normal
XY प्लेन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्मूथ है, सो दिस इज ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सब कुछ है, ठीक है। नाउ सपोज देयर इज वन फंक्शन, इसका ग्राफ इस टाइप से है, इट हैज अ कॉर्नर, ठीक है। एट दैट कॉर्नर इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। जब भी कॉर्नर होता है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्यों होता है? बिकॉज फ्रॉम दिस साइड अभी इधर से आप देखो तो इसका स्लोप कितना लगेगा कि कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। बट अगर आप इस साइड से ग्राफ को देखो, अप्रोच करो इस साइड से, सो यू वुड से कि इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, राइट? या तो वैल्यूज ऑफ dy by dx ऑफ दिस फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये तो बहुत ही लेमन टर्म्स में मैंने आपको दिखाया कि हाउ यू कैन टेल whether the function is differentiable or not just by looking at its graph, ठीक है। This is one case. Another case where the function cannot be differentiable is when the graph itself is broken. I mean there is some gap. Step function इस टाइप से the function has no value or it's broken, ये gap broken. So अगर ऐसा कोई ग्राफ होता है then we can also say that the function is non-differentiable or cannot be differentiated at that point, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है, ये बेसिक थ्योरी हो गया जो मैंने बताया। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू टेल वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट? सो आई वांट टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, I want to ask you a very simple question. Do you guys know the graph of the integer function? Do you know the graph of if fx equal to integer x? इसका ग्राफ आप लोगों को पता है क्या होता है? नहीं पता है तो याद कर लो। Guys, जितने भी मैथ्स में इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं which you keep on seeing here and there, उनके ग्राफ्स आपको, उनका रेंज वगैरह ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, इंटीजर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, इनके इनवर्स के फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं, इनका सीरीज एक्सपेंशन वगैरह वेरेवर पॉसिबल लाइक सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टेन एक्स, है ना, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power of -1, similarly series expansion of 1 minus x to the power -1, binomial series expansion. So these are the tools. You never know कि कब आपको जरूरत पड़ जाए इस चीज की, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें आपको टिप्स पे रखो, और ये एक साथ तो नहीं होगा। जैसे जैसे यू कीप ऑन सीइंग दिस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, टेक मेंटेन अ नोट, वहां पे आपको उसको अपडेट करते जाओ कि टुडे आई नीडेड दिस फॉर्मूला, तो उसको नोट कर लिया, ये ग्राफ मुझे जरूरत पड़ी उसको नोट कर लिया। इस टाइप से यू अपडेट योर नोट्स और यू प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। तो आई वाज आस्किंग दैट व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन fx इक्वल टू इंटीजर x, सो इट इज लाइक दिस 1, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 and it continues like this. The graph is, if x lies between 0 and 1, x is not 1, it's less than 1, lying between 0 and 1, so integer part will be 0, integer part will be 0, ठीक है, ये होगा। फिर जैसे ही x आपका 1 हुआ, जैसे ही x 1 हुआ, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जैसे ही 1 हुआ इंटीजर पार्ट बिकम 0, और 2 से जस्ट पहले तक इट्स वैल्यू विल बी 2 ओनली, 1 ओनली, सॉरी, ठीक है। सो व्हेन x lies between 0 and 1, its value will be 0. When x lies between 1 and 2, its value will be 1. When x lies between 2 and 3, its value will be 2. When x lies between 3 and 4, its value will be 4. So what can you comment? That the integer function is broken, or we can say it's discontinuous at every integer value.
राइट? देख रहे हैं अपन कि 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सिमिलरली 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, कंटिन्यूस लाइक दैट, ठीक है? सो अब यही चीज को इधर पे लगाना है कि दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल जहां जहां पे ये फंक्शन होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वी नो दैट इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। यू कैन से अपना एक्सपीरियंस है कि वेयर एवर दिस हैज इंटीजर वैल्यू, ठीक है? जहां पे इसकी इंटीजर वैल्यू होगी वहां पे डिसकंटिन्यूअस ये होगा, राइट? अब वी नो दैट n इज इंटीजर, p इज आल्सो इंटीजर, sin x गड़बड़ करेगा, राइट? तो अपन अगर इसका ग्राफ बनाए अगर लेट्स से, ठीक है, and x lies between the 0 to pi, right? So ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, दिस इज योर पाई, राइट? sin x का sin x का ग्राफ ये है, तो व्हाट विल ग्राफ ऑफ p sin x? नथिंग बट सिंपल इसकी पीक which was earlier 1, it will be p, right? So अब ये तो इंटीजर था, जहां पे ये इंटीजर होगा तो दोनों मिला के इंटीजर होंगे और वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस इज व्हाट आई हैव सेड सो फार, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि this function has integer value at what points, or the question was कि at how many number of points बताना है कि at find the number of points यहाँ पे। तो we are trying to find out how many times या what is the number of points where this has integer value, because only at those point ये पूरा integer value रखेगा और ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है? तो this is p एक इंटीजर है, राइट? सो वी नो दैट अब ये इंटीजर है, जहां पे वैल्यू इसकी कितनी है, p है, तो यहाँ कहीं पे एक 1 वैल्यू भी होगा, इधर पे 2 वैल्यू होगा, 3 वैल्यू हो गया, अप टिल सम कुछ p है। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक कोई x होगा जहां पे इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट? एक कोई पॉइंट होगा जहां पे इसकी वैल्यू, अब p sin x की ये p है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, ऐसे ऐसे करके कभी कभी इसकी वैल्यू p माइनस 1 भी होगी, राइट? तो आप देख पा रहे हो कि इस पार्ट में हाउ मेनी लोकेशंस यू आर गेटिंग कि जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेके p माइनस 1 तक इतने इंटीजर्स आपको मिल पा रहे हैं इस रेंज में, ठीक है? What we are trying to say that at how many points this function p sin x has integer value, तो कभी इसकी वैल्यू p sin x की वैल्यू कभी मैक्सिमम वैल्यू कितना है p है, तो कभी 1 होगा, समटाइम्स इट विल बी 2, 3 भी होगा, 4 भी होगा, p minus 1 भी होगा, राइट? तो just by doing that you can say that at from here to here we will get p minus 1 points, right? यहां से यहां तक we will get p minus 1 point. By symmetry, here also you will get these integer value, right? Here also you will get p minus 1 point, right? So p minus 1 point यहां से यहां तक p minus 1 point similarly symmetry से इस वाली इस साइड पे मिलेंगे and 1 will be at the peak. So total number of points जहां पे this function will have integer value will be p minus 1 plus 1 for this p, and then again for the other half p minus 1. So total point will be 2p minus 1. You got the answer?
ठीक है, कोई डिफिकल्टी? आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। समराइज कर देता हूं एक बार फिर से कि अल्टीमेटली वी वर सपोज टू फाइंड those values of x, or in fact not exactly the values of x, simply at how many x we have this value as integer. So we know this is integer, तो जहां पे ये इंटीजर होगा तो ये पूरा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। सो ये इंटीजर, ये फंक्शन कितनी जगह पे इंटीजर है या कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज ये हो पा रही है, तो उसके लिए वी प्लॉटेड द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद वी कैन से दैट उस ग्राफ की वैल्यूज इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू p, ठीक है। तो 0 से p के बीच में कितना इंटीजर वैल्यूज आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, टिल p-1 p आया। अब यहां से वहां तक p-1 आया, यहां से यहां तक भी सिमेट्री से p-1 आएगा, ठीक है, और एक p आया। So count all these points, you will get the root number of points where this function will be having integer value. It will be 2p-1, p-1 plus 1 and again plus p-1. Total point number of points 2p-1, right? इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी मैंने सोल्यूशन दे रखा है, आपको वो समझ में आता है उसको समझिए, ठीक है। ये कन्वेंशनल सोल्यूशन है जो बुक में दिया रहता है, और ये वो है जिससे यू डेवलप इनसाइट इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। Oh, next question is gx is given as summation of fx plus f of 1 minus x. Your gx is given f of x plus f of 1 minus x. It is also given that x is an element of 0, 1, right? It's given now. Right. Now we have to find the intervals where the gx is increasing or decreasing, right? Or this is also given that this is first information, this is second information, that f double dash x is positive, right? This much information is given. ठीक है, अच्छा, now we'll start decoding the given information. So from here what can we say? If f double dash x is 0, we can say that the graph of f dash x will be increasing in nature, right? You can say that or not? If f double dash x greater than 0 पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं ना कि जो उसका जस्ट पहले वाला डेरिवेटिव होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब भी आपको पता है कि if some function is increasing, it implies that fx is greater than fy if x is greater than y, ठीक है। सो यहां से तो ये इंफॉर्मेशन है। अब अपने को निकालना है कि gx किन किन इंटरवल्स में इट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फर्स्ट स्टेप, एंड दिस डिसीजन इज टेकन बाय इट्स डेरिवेटिव। जहां पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा जिस भी इंटरवल में, फॉर दैट इंटरवल इट विल बी इंक्रीजिंग, and wherever it is decreasing, we can say that it is, wherever the slope is negative, we can say that gx is decreasing, right? So we calculate g dash x. It comes out to be f dash x f dash 1 minus x, then you again differentiate 1 minus x minus 1, so it comes out f dash x minus f dash 1 minus x, right? So अभी ये है कि g dash x comes out to be difference of f dash x minus f dash 1 minus x. तो अभी
अभी अपने को पता नहीं कि एफ डैश एक्स बड़ा है कि एफ डैश 1 माइनस एक्स बड़ा है, तो हम डिसीजन वी कांट टेक द डिसीजन कि वेदर जी डैश एक्स इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, अब अभी अपन आते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, नाउ केस नंबर 1, यहाँ पे बेसिकली दो वेरिएबल है ना, एक तो ये है, एक तो ये है। तो केस नंबर 1 है कि अगर x इज ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, दैट इज x is greater than half, that is x is greater than half if x is greater than 1 minus x। तो यहां से ये निकल के आया कि x is whenever x is greater than half, तो we know that f dash x is increasing, f dash x is increasing, that is f dash x will be greater than f dash 1 minus x। केयरफुली देखो आराम से, क्योंकि f dash x इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर x 1 by x से बड़ा है तो f dash x की वैल्यू f of 1 by x से बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, वही लिखा है, बिकॉज f dash x इज इंक्रीजिंग, तो जो बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर f dash x इज ग्रेटर देन f dash 1 minus x, दिस इंप्लाइज कि f dash x is minus f dash 1 minus x is greater than 0, right? अभी जैसे ये greater than 0 हुआ, look at the g dash x, look at the g dash x, ये क्या हो जाएगा? We can write this as a g dash x, it becomes 0, greater than 0। so यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है? यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि g dash x is positive, मतलब कि gx is increasing, right? So we can say from here that gx is increasing। ठीक है, मतलब कि whenever x is greater than half, what we concluded that g dash x was positive, which implies that gx is increasing for all x element of half से 1 तो अपना डोमेन था ही। ठीक है, नाउ केस 2 क्या आया? when x is less than 1 minus x, या we can say x is less than half, right? when x is less than 1 minus x, simply we can say that f dash x भी f dash 1 minus x से छोटा होगा, because f dash x सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बड़ा तो x पे वैल्यू उसकी बड़ी, तो x is less than 1 minus x, तो f dash x भी होगा 1 उससे कम। so इससे क्या निकल के आया? less than 0, right? Again we can write g dash x, again we can write g dash x is less than 0। इधर से क्या रिजल्ट निकल के आया कि gx is decreasing for all x element of 0, half। ऊपर लिखा हुआ है for x less than half के लिए कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया कि when this was 0, this was 1, this was 1 by 2, इस वाले 0 से हाफ के लिए gx was
डिक्रीजिंग एंड इस वाले हाफ के लिए gx was increasing, ठीक है। और हाफ पे क्या होगा, both of these values will be equal, so slope will be 0। so अगर मैं विजुलाइज करूं तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा gx का। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में पूछा नहीं था, जस्ट एड ऑन नॉलेज है, राइट। तो आपको समझना है कैसे क्वेश्चन डिकोड करता है। ठीक है, अभी कोई डाउट आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देख के एकदम घबराना नहीं है, जस्ट ट्राई टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, ठीक है, एंड ट्राई टू थिंक कि फॉर व्हाट पर्पस दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन, कैन आई यूज दैट इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज, क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, ठीक है। तो कभी पैनिक नहीं होना है, सिंपली टेक एन इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट। कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है तो ट्राई टू फाइंड इट सिग्निफिकेंस। जैसे कि इसने जैसे ही बोला कि एफ डबल डैश एक्स 0 है, आई नो कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे ही बोला कि जीएस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंडेंसी पे कमेंट करना है, आई नो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, because derivative is the thing which tells you whether the graph is increasing or decreasing, whether the function is increasing or decreasing. So try to process the question in this way only, ठीक है। remember one thing, तो मैंने वेबिनार में भी कहा था कि problem is nothing but a solution in disguise, तो आपको वो डिस्गाइज खत्म करना है उसका, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है मतलब नहीं है, अपने काम की इंफॉर्मेशन क्या है, सिंपली आइडेंटिफाइड दैट मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 ही क्वेश्चन थे ना, या राइट। सो हम लोगों का आज के सारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैंने इसमें कुछ प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। और जहां पे भी सीरीज वगैरह का यूज हो सके, ट्राई टू यूज दैट, क्योंकि जब भी आप सीरीज यूज करते हैं तो क्वेश्चन का एक बेटर इंसाइट मिलता है, गलती करने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है, और टाइम भी सेव होता है, राइट। सो ट्राई टू यूज series as much as possible if you can handle the calculation, right? Or in case you are not able to solve any of the problem, practice problem, do tell me, okay? मिलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर।